Okay, so today हम 2018 मई जून के पेपर स्टार्ट करेंगे. ठीक है. Now start with question number 1. Sodium and magnesium are the first two elements in the third period. Okay. Sodium and magnesium both react with cold water to produce the same type of products in solution. With sodium, the solution is clear, but with magnesium, it appears cloudy. Write an equation for the reaction of magnesium with cold water. तो क्लाउडी क्यों नजर आता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम के केस में प्रोडक्ट है, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट क्या है? इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, तभी क्लाउडी नजर आ रहा है. ठीक है. और वहां पे क्लियर इसलिए नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट कंप्लीटली डिसॉल्व हो रही है. राइट? यस सर. ओके. सो इक्वेशन लिखनी है. तो मैग्नीशियम विद वाटर, जी प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी? कोई बता सकता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? MgOH. MgOH. OH. ट्वाइस. ये मिस्टेक ओवरकम करनी है कि जब भी फॉर्मूला बनाना हो हमेशा उन आयंस के चार्जेस देखें और उनको क्रिस क्रॉस कर लें. ठीक है जी. Sir, if it's with hot water, it will form MgO, right? With a steam, not hot water. Hot water के साथ भी same reaction होगा, but when magnesium reacts with the steam, then magnesium oxide will form. A steam. Yes, मतलब gaseous state होनी चाहिए. Otherwise अगर liquid state में water है, चाहे hot है या cold है, magnesium hydroxide form होगा. So you're saying if Clear है? yeah, so you're saying if H2O is steam, then it would form MgO, right? Yes, then when it's in gaseous state, then oxide will form, otherwise hydroxide will form. Okay. Okay. So we have to balance the equation because there are 2 oxygen and 4 hydrogen on the right side. So we will put 2 as a coefficient of water. Clear है सबको? Yes sir. Suggest Yes, why the sir. solution is cloudy after the reaction of magnesium with cold water. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, क्लाउडी है तो इसका मतलब है कि पार्शियली डिसॉल्व हुआ है. सही है. कंप्लीटली इनसॉल्युबल होता तो क्लाउडी नहीं होता बल्कि प्रॉपर प्रेसिपिटेट्स मिलते. So we can write that magnesium hydroxide is less soluble. ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. Group 2 elements including magnesium reacts with oxygen with a dilute acids and with dilute acids. Okay. There are trends in both the physical and chemical properties of the element and their compounds down the group. Okay. Reactivity generally increases from magnesium to barium. ठीक है. Reactivity ज़्यादा हो जाती है जैसे जैसे हम down the group 1 और group 2 move होते हैं. Right? Okay.
explain why there is a general increase in reactivity from magnesium to barium? 2 marks हैं तो 2 points देने हैं। जी क्या रीजन हो सकता है रिएक्टिविटी इंक्रीज होने का? Number of valence electron increases down the group. वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बेटा सेम रहते हैं ना, क्योंकि ग्रुप की बात हो रही है। Size increases down the यस, साइज इंक्रीजेस या नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, yes. तो उससे क्या होगा? Less attraction of nucleus to the outer electrons. बिल्कुल सही। सो फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरियम the atomic size increases, hence less attraction between nucleus and valence electrons. So it is easier to lose the electron, so the reactivity increases. ये point clear है सबको? Yes. Yes. Okay. Give 2 observations for the reaction of magnesium with oxygen. Write an equation for this reaction. Include state symbols. 3 marks हैं। पहले तो ऑब्जर्वेशन और 2 ऑब्जर्वेशन और इक्वेशन है। चले पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। मैग्नीशियम स्टेट सिंबल्स देने, मेटल है ग्रुप 2 का तो स्टेट सॉलिड होगी। इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन is O2 and a gas. What will be our product? Magnesium oxide. Formula क्या होगा magnesium oxide का? MgO. MgO. Okay. So magnesium oxide is an ionic compound, hence it's a solid. Equation balance करने के लिए we can put a half as a coefficient of oxygen, right? Yes. Okay. तो ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और ग्रुप 2 का कंपाउंड है, तो हम लिख सकते हैं व्हाइट सॉलिड फॉर्म्स। ये एक ऑब्जर्वेशन हो गई। और ऑक्सीजन के साथ जब भी मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो व्हाइट फ्लेम ऑब्जर्व होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम। ठीक है? Yes, sir. ओके। Write an equation for the reaction of magnesium with sulfuric acid. It means किस रिएक्शन की बात हो रही है? Magnesium is a metal and sulfuric acid is an acid. So when a metal and acid reacts, what will form? G. Salt. Salt along with salt. Salt and hydrogen gas is formed. ठीक है? तो इक्वेशन क्या बनेगी?
मैग्नीशियम विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के ये जो दो हाइड्रोजन है बेसिकली ये किस में कन्वर्ट होंगे, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होंगे। तो इट मींस वी आर लेफ्ट विद द Mg, 2 पॉजिटिव चार्ज एंड SO4 विद अ 2 नेगेटिव चार्ज। तो जब चार्जेस सेम होते हैं तो हम जस्ट ज्वाइन करके लिख देते हैं सॉल्ट का फॉर्मूला। सो दैट इज हाउ द इक्वेशन विल बी फॉर्म। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. Okay. Suggest why there is a general decrease in the melting point of elements down the group 2। जी इसका कोई रीजन मुझे दे सकता है? Van der Waals forces decreases down the group वंडर वॉल फोर्सेस जो है किसके बिटवीन होती हैं? between molecules. So when we are talking about group 2, they are elements and metals. So how there is a molecule? Yes, sir. ठीक है, कोई और रीजन? देखें, Atomic size increases एटॉमिक साइज इंक्रीजेस and number of shells also increases. तो ये दोनों सेम बात है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कौन सी बॉन्डिंग होगी? अगर मेटल्स हैं तो कौन सी बॉन्डिंग होगी? Ionic. Metallic. Ionic bonding is in the compounds. These are the elements. Okay. Yes, sir. Okay. So we can say that down the group 2, and whenever we talk about a metallic bond, there is a attraction between the free electrons and the mobile and the cations. So down the group, cationic size increases, but the charge remains same, leads to decrease in charge density। ये पॉइंट सबको क्लियर है? देखें, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, ये साइज है। कैल्शियम का भी 2 पॉजिटिव चार्ज है मगर साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम होता है, साइज और बड़ा हो गया और चार्ज वही रहा। तो चार्ज जो है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव हो रहे हैं, सेम चार्ज ज्यादा बड़े एरिया में या ज्यादा बड़े साइज में स्प्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से उस चार्ज की डेंसिटी या इंटेंसिटी इंक्रीज सॉरी डिक्रीज हो रही है। राइट? ये बात क्लियर है सबको? Yes. ओके, तो इसकी रिजल्ट में क्या होगा? Hence decrease in attraction between cations
एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर अट्रैक्शन वीकर हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा. Is this clear to everyone? Yes, sir. Now question number 2. Ammonium iron to sulfate, here we have a formula, has a relative formula mass of MR of 284. Define the term relative formula mass. So here you have to write the definitions, और definitions आप लोग याद करेंगे. Definitions मैं past papers में discuss नहीं करूंगा. One of the cation in ammonium iron 3 sulfate is the ammonium ion. Draw dot and cross diagram of an ammonium ion. Show outer shell electrons only. Use cross to show the electrons of nitrogen and use dot to show the electrons of hydrogen. अगर आप अमोनियम आयन को रिकॉल करें तो अमोनियम आयन में हमारे पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हुए हैं, जिनमें से 3 हाइड्रोजन कोवैलेंटली बॉन्ड हैं और एक हाइड्रोजन डेटिव बॉन्ड बनाता है, राइट. और आयन है तो इसलिए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं. ये बात क्लियर है सबको? Yes. सो अगर नाइट्रोजन डेटिव बॉन्ड बना रहा है तो वहां पे वो नाइट्रोजन अपना पूरा पेयर शेयर करेगा और 3 हाइड्रोजन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ मैं 3 जगहों पे 3 डॉट ये डेट कोवैलेंट शो करूंगा, यहाँ पे मैं एक डेटिव शो करूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा. जी, ये स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? Yes. ओके. Suggest the shape of ammonium ion and predict the bond angle. तो अगर आप अमोनियम आयन में बॉन्ड पेयर्स देखें तो कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? देयर आर 4 बॉन्ड पेयर्स अराउंड नाइट्रोजन एटम. एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर? देयर इज 0 लोन पेयर. और जब भी 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हो तो शेप टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल 19.5 डिग्रीज. ये क्लियर है सबको? ये आपको Yes. बॉन्ड एंगल और शेप्स याद करनी है. जी, सबको पता है ना इन बॉन्ड एंगल्स और शेप का? Yes. Yes. ओके. In aqueous solution, the ammonium ion act as a weak Bronsted-Lowry base. Explain the meaning of the term weak Bronsted-Lowry acid. Weak Bronsted-Lowry acid की बात हो रही है. तो देखें, इधर उन्होंने आपसे 2 बातें पूछी हैं, ठीक है. एक तो Bronsted-Lowry acid को भी एक्सप्लेन करना है और साथ वीक को भी एक्सप्लेन करना है. तो आप पहले Bronsted-Lowry एसिड को एक्सप्लेन कर लें, या आप अगर दोनों को एक साथ करना चाहें तो इस तरह लिखेंगे. It is partially ionizes
ठीक है, और पार्शियली आयोनाइजेस से हमने उसके वीक होने को डिफाइन कर दिया है, एंड इट इज अ प्रोटॉन डोनर। ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड का मतलब क्या है? वो कंपाउंड जो प्रोटॉन डोनेट करे, और वीक का मतलब क्या है? कि जो जो है पार्शियली आयोनाइज हो। जी, ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. ओके, write an equation to show this behavior of ammonium ion in water, include state symbols। अच्छा, किस behavior की बात हो रही है? Being a weak Bronsted Lowry acid, if it's an acid, it will donate or provide hydrogen ions, right? So, और किसके साथ दिखाना है? वाटर के साथ शो करना है। वीक के लिए हम रिवर्सिबल साइन शो करेंगे, और हाइड्रोजन आयन अगर ये रिलीज करेगा तो इट विल बिकम NH3, और वो हाइड्रोजन आयन वाटर एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेट सिंबल्स का है, अमोनियम आयन की स्टेट एक्वस होगी, वाटर लिक्विड होगा, अमोनिया एक्वस होगा, एंड H3O पॉजिटिव भी एक्वस होगा। जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, Mohr's salt NH4 twice FeSO4 2 XH2O is the hydrated form of ammonium iron 2 sulfate। यानी कि जब उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं था, उन्होंने शुरू में हमें बताया था, ये देखें, तो हम उसको अमोनियम आयरन 2 सल्फेट कह रहे थे, और जब उसके साथ देयर इज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देन इट इज कंसिडर्ड एज मोहर सॉल्ट। ओके, Yes. X represent the number of moles of water in 1 mole of the salt। A student wanted to determine the value of X। 0.784 gram of hydrated salt was dissolved in water, and this solution was acidified। Okay, all of the solution was titrated with 0.02 mole per dm cube potassium magnate 7। 20 centimeter cube of this potassium magnate 7 solution was required for the complete reaction with Fe2 positive ions। ठीक है, use the change in oxidation numbers to balance the equation for the reaction taking place। okay, तो ये basically आपका redox का पार्ट आ गया। रिडॉक्स की जो इक्वेशन बैलेंसिंग होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपने इक्वेशन बैलेंस करनी है। जी, रिडॉक्स बैलेंसिंग किस किस को आती है? जी, सर पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करते हैं।
ये देखें, here we have a equation. अगर हम Fe2 प्लस और Fe3 प्लस में देखें तो हमारे पास चेंज क्या आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का? +1. +1। ये क्लियर है सबको? क्योंकि Fe3 प्लस चार्ज है और यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें चेंज मिल जाएगा। ओके, देखिए मैग्नेट के साथ 7 लिखा हुआ है, ये बात इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो Mn है उसका चार्ज क्या है? 7 पॉजिटिव है, और ये 7 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में जा रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है? -5 का आ रहा है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो अगर वहां पे -5 का चेंज है और यहाँ पे +1 का चेंज है, तो हमें हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज होता है उसे इक्वल करना होता है। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चेंज भी मेरे पास क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। और अगर ये +5 हो जाएगा तो इट मींस कि मुझे यहाँ पे और यहाँ पे मैं कोएफिशिएंट 5 प्लेस करूंगा, क्योंकि अगर 5 Fe2 प्लस आयन होंगे और वो 5 Fe3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होंगे, देन देयर इज अ चेंज ऑफ +5। इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. जी, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज क्लियर कर लें। ठीक है, ओके। अब अगर MnO4 हमारे पास मैग्नेट में 1 Mn है और यहाँ पे भी 1 है, तो मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट प्लेस करूंगा क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा। नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हाउ मेनी ऑक्सीजन्स वी हैव? 4। सो on the right hand side before water I will put a 4 as a coefficient to make the oxygen 4। ये क्लियर है सबको? Yes. देन इस 4 प्लेस करने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू प्लेस 8 ओवर हियर। ये बात क्लियर है जी? अगर इस बैलेंसिंग में किसी को भी कोई मसला है तो प्लीज पूछ लीजिए और अपना डाउट क्लियर कर लें। सर आपने Fe को कैसे बैलेंस किया है? Fe को देखें, हमने देखा Mn +7 से +2 में जा रहा है, Yes sir. तो चेंज कितने कितने? -5. -5 का, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, राइट? Yes sir. तभी Mn +7 से +5 में कन्वर्ट हो गया। अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है और उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो इट मींस जो इलेक्ट्रॉन आयरन लूज कर रहा है वो भी 5 होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 5 और 5 प्लेस ना करूं, तो अगर आप एक्सेप्ट दिस 5 ऑब्जर्व करें तो एक आयरन 2 प्लस एक आयरन 3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं? जी, सर आपने क्या पूछा है? मैंने ये कहा है कि अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे 5 हटा दें, तो अब देखें आयरन 2 प्लस जब आयरन 3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं? सर एक। तो अगर गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है Mn, तो इट मींस द नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी 5 एज वेल, राइट? Yes sir. तो इट मींस के अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी अ 5 मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस एंड देयर मस्ट बी अ 5 मोल्स ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन एज वेल, Yes sir. ताकि नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। Yes sir. ओके, तो जब 5
इक्वल हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेट में जो गेन हो रहे थे और आयरन से जो लूज हो रहे थे, तो उसके बाद हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया। हमने देखा यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो हमने यहाँ पे 4 पुट कर दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन 4 हो गए, और इस 4 पुट करने की वजह से हाइड्रोजन से 8 हो गए, तो हमने यहाँ पे 8 पुट कर दिया। इज इट क्लियर? यस सर। और mn को आपने किस तरह किया है? mn को हमें करना ही नहीं पड़ा ना, क्योंकि mn इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए थे mn के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। यस सर। तो फिर हमें कैसे पता लगता है कि किसके कौन से वाले के करने हैं? देखें, हमें दोनों के इक्वल करने, ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने हैं। अब वो इक्वल करने के लिए किसी एक के साथ कोएफिशिएंट लगा के इक्वल हो जाए तो भी सही है, और अदरवाइज दोनों के साथ लगाने पड़ रहे हैं तो हम दोनों के साथ लगा के करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव के बजाय Fe4 पॉजिटिव होता, यस ठीक है, सर। तो हमारे पास चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा होता? +2, और उधर क्या था? -5, राइट? यस सर। तो मैं क्या करता, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता और इसको 2 से करता, से। तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट लगाता और यहाँ पे 5 और 5 लगाता। यस सर। बात समझ में आई? यस यस। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं। अब वो किसी एक के ऊपर कोएफिशिएंट लगाने से हो जाए या दोनों के पास लगाने से हो, जिस तरह भी हो रहे हो उस तरह आप बैलेंस करेंगे। सर हमने मल्टीप्लाई किया बैलेंस करने के लिए, तो उसके बाद फिर Fe पे अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो फिर हम 5 क्यों लिख रहे हैं, 10 क्यों नहीं होगा? देखें, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 उस कंडीशन में हम कर रहे थे, एक मिनट, एक मिनट, देखें, MnO4 नेगेटिव अगर इस कंपाउंड में इससे रिएक्ट करता है, ठीक है, C2O4 नेगेटिव से, we will get Mn2 positive plus CO2 and plus H2O, and further we have a acidic medium, क्योंकि ऑक्सीडेशन हमेशा एसिडिक मीडियम में होती है, ठीक है। यस। ओके, अच्छा, यहाँ पे Mn पे क्या चार्ज है? 5। नो, इस Mn का क्या चार्ज है? सर 8। -1 is the net charge. Oxygen have a 2 negative charge times 4, which means -8. हमारे पास नेगेटिव ओवरऑल चार्ज -1 बच रहा है, तो इट मींस Mn पे क्या चार्ज होगा? +7। क्लियर है? यस। ठीक है, सो Mn +7 से +2 में चेंज हो रहा है, इट मींस +7 से +5 का मतलब क्या है? -5 का चेंज है। ये बात क्लियर है सबको? यस। ओके, अच्छा, यहाँ पे कार्बन पे क्या चार्ज है? सर कौन से वाले कार्बन पे? 6। इस वाले कार्बन पे। 6 दोबारा चेक करें अच्छे से। +3। 6 +3, वेरी गुड। कैसे हमने वर्कआउट किया? C2O4 का ओवरऑल चार्ज -2 है, -2 ऑक्सीजन का चार्ज होता है, एंड वी हैव अ 4 oxygens, which means -8. Net charge is -2. Oxygen have a -8 charge, then it means carbon have a +6, but there are 2 carbons, so each carbon atom have a +3 charge. Is this clear? यस सर।
So here we have a +3 times 2. What is the charge over here on carbon? जी +4. +4. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन है? 2. और इधर कितने कार्बन है? 1. तो मैं अगर यहाँ पे 2 कार्बन प्लेस करूं बैलेंस के लिए, तो व्हाट आई विल फाइंड कि आपके पास यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है? +8 and +6. So here we have a change of +2. ये बात क्लियर है? यस जी, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो प्लीज ये बात यहाँ पे ये डाउट क्लियर करें यहाँ का। सर ये +6 और +8 वाली बात समझ नहीं आई। देखें, 2 कार्बन थे ना, यस तो 2 कार्बन का कलेक्टिव चार्ज हमने क्या फाइंड किया था? +6 और वो 2 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो टोटल चार्ज क्या हो रहा है दोनों कार्बन का? +8 +8. तो चेंज कितने का आ रहा है? 2 ठीक है +2 का। और यहाँ पे चेंज कितने का है? -5 -5 का। तो अब हमें अगर इस चेंज को इक्वल करना है, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 2 एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 5. So I will get a positive 10 over here and I will get a negative 10 over here. ये बात क्लियर है? यस तो अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो जिन स्पीशीज की वजह से -5 का चेंज आ रहा है, उनके आगे मैं कोएफिशिएंट 2 प्लेस करूंगा। ये बात भी क्लियर है? जी सर जी, सबको क्लियर है? यस सर ओके, नाउ कार्बन वाले चेंज को मैंने इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। तो आई विल पुट अ 5 ओवर हियर, बट जब मैं 5 यहाँ पे पुट करूंगा तो 2 ऑलरेडी है, तो इट मींस 5 times 2 makes it 10. ये क्लियर है सबको? यस यस सर तो अब हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गए। जब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाता है, तो देन आफ्टर दैट वी विल बैलेंस ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। सो ऑक्सीजन काउंट करें, यहाँ पे कितने? 8. और यहाँ पे कितने? 20. So we have a total sum of 28 oxygens on the left hand side, right? यस सर यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं? 20. तो यहाँ पे मुझे करने कितने? 8, ताकि 28 हो जाए। सो आई विल पुट अ 8 ओवर हियर. इज दिस क्लियर? यस सर ओके, तो 8 प्लेस करने से यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो गए? 16. सो आई विल पुट अ 16 ओवर हियर. जी, क्लियर हुआ सबको? यस यस सर फिर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। ओके, देन तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज बैलेंस किया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। ठीक है? What is the role of Fe2 positive ion in this reaction? Explain your answer. तो Fe2 positive क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है? जी, ऑक्सीडाइज्ड so it means
It is reducing agent, right? Yes, sir. The substance which oxidizes is always a reducing agent. And to explain, we have explained because it loses its electron. ये बात क्लियर है? Yes. Yes. Okay, now calculate the amount in moles of magnesium magnate 7 ions that reacted. So if you see, we have a concentration of magnate ions over here, right? And we have a volume. So if concentration and volume is provided, तो हम number of moles calculate कर सकते हैं. Number of moles अगर हमें किसी भी substance के calculate करने हैं, and we are provided with the concentration and volume, so we will multiply that concentration with the volume, but that volume must be in dm cube. Okay, so the concentration provided is 0.0200, multiplied by volume is 20 centimeter cube, so we have to divide it by the thousands. Can anybody tell me the answer? 5 exponent minus 4. 5. Yes, is it 5? 4 multiplied by 10 to the power minus 4. Okay, 4 exponent minus 4. Now calculate the amount in moles of Fe2 positive ions in the sample of the salt. Okay, so I think कि अगर हमें आयरन के मोल्स मालूम करने हैं और आयरन का हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो हम मोल रेशो लेंगे, और हम मोल रेशो में देख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ मैग्नेट रिएक्ट्स विद 5 मोल्स ऑफ आयरन, राइट? तो हमें रेशो मिल रहा है यहाँ से बैलेंस्ड इक्वेशन से. जी, ये बात समझ में आई सबको? Yes. So we will take the ratio between magnate and Fe2 positive to find the number of moles of Fe2 positive, and the ratio is 1:5. So if there are 4 exponent minus 4 moles, then it must be X. So X is equals to 4 exponent minus 4 times 5 divided by 1. आंसर बताइए क्या आ रहा है? 2 multiplied by 10 raised to the power minus 3. 2 exponent minus 3. जी, ये यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. Now calculate the relative formula mass of ammonium sulfate, sorry, मोहर salt. जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? Sir, 0.784 divided by
2 multiplied by 10 raised to power minus 3. सही। मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। तो हमें फॉर्मूला मास एमआर कैलकुलेट करना है। इसमें देखें, इस पूरे कंपाउंड में आयरन के कितने मोल्स हैं? यस। जी, इस पूरे कंपाउंड में आयरन के कितने मोल्स हैं? Sir, 2 multiplied by 10 raised to power minus 3. वो तो हमने फाइंड किए हैं, मगर अगर इस कंपाउंड का हमारे पास 1 मोल है तो उसमें आयरन के कितने मोल्स होंगे? 1। 1। तो इट मींस जितने हमारे पास आयरन के मोल्स आए हैं उतने ही इस कंपाउंड के भी मोल्स होंगे उस सैंपल में। Yes. ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? Yes. तो हमारे पास इस कंपाउंड के हमें मोल्स मिल गए जो कितने? 2 एक्सपोनेंट -3 मोल्स हैं। और इस कंपाउंड का जो सैंपल यूज किया था उसका मास यहाँ पे हमें बताया हुआ था कितना था? 0.784 ग्राम। तो हमें इस कंपाउंड का मास भी पता है 0.784 ग्राम्स, और इस कंपाउंड के मोल्स भी पता है। ये बात क्लियर है? यस Yes. सर। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन एमआर टू फाइंड द एमआर, and MR is equals to mass upon moles. Mass are 0.784 divided by number of moles 2 exponent -3. So we'll get the relative formula mass. जी क्या आंसर आ रहा है? 392। 392। जी, ये पार्ट सबको क्लियर है? अब वो आपसे कह रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करें। कैसे करेंगे? जी, वैल्यू ऑफ एक्स भी बता सकता है? ओके, देखें, हमारे पास पूरे कंपाउंड का जो फॉर्मूला गिवन है वो क्या है?
ये है राइट। और इस पूरे कंपाउंड का मास हमें क्या मिला 392। ये बात क्लियर है सबको? पूरे यस इसका Yes. एमआर राइट। बट मैं इसका एमआर कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस तो और अगर मैं उसको माइनस करूंगा तो मुझे जितना वाटर है उसका मास पता चल जाएगा। Yes. तो जरा एमआर कैलकुलेट करें। एक मिनट। वी हैव अ नाइट्रोजन 14 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का नोट कर लें 32.1 है, और आयरन का कितना है 55.8। सो अगर मैं जस्ट इस पार्ट का एमआर कैलकुलेट करूं तो 14 नाइट्रोजन का और 4 हाइड्रोजन है, तो इसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 18 टाइम्स 2 प्लस 55.8 राइट, and then plus sulfate 32.1 64 and 32 96.1 96.1 टाइम्स 2। इन सबको ऐड करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। 187.9 187.9। so this will help me to find the mass of water, और वो क्या होगा 392 minus 187.9। yes, what is the mass of water? 204 204। और उन्होंने x क्या बताया था कि बेसिकली दीज आर द मोल्स ऑफ वाटर। सो H2O, मोल्स ऑफ H2O विल बी 204 डिवाइडेड बाय 18। 18 वाटर का एमआर होता है। जी क्या आंसर आ रहा है? 11 दोबारा बताइए। 11 आ रहा है। जी सर ये MR 284 आ रहा था। अच्छा 284 आ रहा था। ओके नहीं, अब इसका आंसर मास 108 होगा, मास ऑफ वाटर। ओके ओके ओके, ये 284 था। यस 284। ये मास जरा सही से कैलकुलेट कीजिएगा। तो अब इसका आंसर क्या आ रहा है 108 108। so 108 divided by 18 6। 6। जी क्लियर है सबको ये? यस सर ओके most vehicle fuels contain hydrocarbons obtained from crude oil. State the name of the type of reaction that hydrocarbons undergo when being used as a fuel. जी फ्यूल में जब यूज होते हैं तो कौन सा रिएक्शन करते हैं? क्रैकिंग नो, एज अ फ्यूल। कंबशन। कंबस्शन। ठीक है, बर्न होते हैं फ्यूल, एज अ फ्यूल यूज होते हैं तो कंबस्शन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ऑक्टेन एज अ फ्यूल इन A1। तो ऑक्टेन की हमें कंबस्शन की इक्वेशन लिखनी है C8H18 प्लस O2
what will be our products? Carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water. How to balance the equation? सर ऑक्सीजन के साथ 12.5 आ जाएगा, Okay. कार्बन डाइऑक्साइड 8 और वाटर के साथ 9. देखिए हमेशा सही है, मगर हमेशा स्टार्ट कार्बन और हाइड्रोजन से किया करें। यहाँ पे कार्बन कितने 8 हैं, तो मैं यहाँ पे 8 प्लेस करूंगा। कार्बन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन कितने 18, यहाँ पे 2 है, तो इट मींस 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 9 प्लेस करूंगा। नाउ इट मींस देयर आर 9 ऑक्सीजन ओवर हेयर and there are 16 oxygen over here, so 16 plus 9 gives me 25 oxygen। तो अगर यहाँ पे 25 ऑक्सीजन है तो, और मुझे यहाँ पे 25 ऑक्सीजन करने, तो इट मींस मैं ज्यादा सिंपल वे में क्या लिख दूंगा 25/2, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 2 एटम्स ऑलरेडी हैं मॉलिक्यूल में, तो 2 से 2 कैंसिल होके मेरे पास 2 ही ऑक्सीजन बचेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। The supply of material suitable for use as a fuel directly from crude oil is not sufficient to meet the demand. A process is carried out to make some of the larger hydrocarbon molecules more useful. ठीक है, मोर यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जो स्मॉलर होते हैं। तो लॉन्गर हाइड्रोकार्बन्स को, लार्जर हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस होगा? क्रैकिंग। क्रैकिंग, वेरी गुड। As well as producing fuels, this process produces compounds suitable for use in the production of polymers. An example of such a compound is butene, and here we have a formula. Draw the repeat unit of the polymer that is produced from butene. जी, butene से आपने क्या बनाना है? पॉलीमर बनाना है। ठीक है, पॉलीमर का एक रिपीट यूनिट बनाना है। तो याद रखिएगा, जब भी पॉलीमर का रिपीट यूनिट बनाना हो तो वो 2 कार्बन एटम्स जिनके बिटवीन डबल बॉन्ड है, सबसे पहले आप उन्हें बनाएंगे एज अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद उनके राइट और लेफ्ट पे एक एक एम्प्टी बॉन्ड दिखाएंगे। ये बात क्लियर है? ये मैंने कौन से 2 बनाए? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले। ठीक है,
डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे और क्या क्या अटैच है? CH3। CH3 अटैच है और हाइड्रोजन अटैच है, तो मैं एक साइड पे CH3 प्लेस कर दूं और एक साइड पे हाइड्रोजन। इसी तरह दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे भी एक CH3 है और एक H है। सो दिस इज अ रिपीट यूनिट। अगर वो बोलते ड्रॉ 3 रिपीट यूनिट्स, तो इसी को हम 3 बार और आगे कंटिन्यूटी में बना देंगे और फर्स्ट कार्बन का एक बॉन्ड और लास्ट कार्बन का एक बॉन्ड हम जो है ओपन रखेंगे, उसके साथ कोई भी ग्रुप नहीं अटैच होगा। ये बात क्लियर है? यस सर। सर ये अगर एक कार्बन के ऊपर CH3 जो लगा हुआ है उसकी जगह हाइड्रोजन लग जाए और नीचे CH3 लग जाए तो फिर उससे कोई कोई डिफरेंस फर्क नहीं है? पड़ता। नहीं, हम ये CH3 और हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगा दें, दोनों के हाइड्रोजन नीचे लगाएं या दोनों के हाइड्रोजन ऊपर लगाएं या दोनों में से किसी की एक का ऊपर हो एक का नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। Name the type of polymerization that occurs during the production of the polymer in 2। जी, डबल बॉन्ड था, एक अल्कीन था, तो कौन सी पॉलीमराइजेशन करते हैं अल्कीन? एडिशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस। Gases produced in internal combustion engine includes carbon monoxide, oxides of nitrogen such as NO2 and unburnt hydrocarbons, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स कंबस्ट नहीं होते वो ऐसे ही एग्जॉस्ट में आ जाते हैं। These gases are removed from exhaust before they can enter the atmosphere। Okay, catalytic converter use किया जाता है। State what is used to remove these gases from the exhaust। So we use a catalytic converter जो कार एग्जॉस्ट में प्लेस होता है और वो जो है इनको कन्वर्ट कर देता है लेस हार्मफुल गैसेस में और अनरिएक्टिव गैसेस में। Write one equation to show how both carbon monoxide and nitrogen dioxide are removed from the car exhaust। So whenever there is a carbon monoxide and nitrogen oxide, so when they become in contact with the catalyst in the catalytic converter, carbon monoxide converts into carbon dioxide and nitrogen dioxide convert into nitrogen। तो हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है। Okay, if I put a 2 over here, I will get 4 oxygens and 2 carbon। यहाँ पे भी 2 पुट करूंगा तो 4 oxygens और 2 carbon हो गए। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो I will put a half as a coefficient to make this nitrogen 1 as well। ये बात भी क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। State the environmental consequences of allowing unburnt hydrocarbons to enter the atmosphere। जी, unburnt hydrocarbons क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में? ओजोन डेप्रिटेशन। सॉरी, ओजोन थिकनिंग। ओजोन डिप्लीशन का हाइड्रोकार्बन्स नहीं करते। ओजोन डिप्लीशन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स करते हैं, CFCs करते हैं। ठीक है, जी सर। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स का जो कॉन्सिक्वेंस होता है दैट इज फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है,
You all know what is photochemical smoke. जी सर. D part, vehicle fuels are treated to remove sulfur. If sulfur is present in a fuel when it is burned, SO2 is produced and may be released into the atmosphere where it can form a acid rain. Acid rain can contribute to breathing difficulties. Identify two other consequences of acid rain in the atmosphere. एक consequence उन्होंने बता दिया, इसके अलावा दो और बताएं. Acid rain cause होती है Erodes buildings ठीक है, good. and kill fishes. Erodes buildings and kills fishes. Okay. ठीक है, सॉइल की एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं, सॉरी इंक्रीज कर देते हैं. ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है जो आप यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक की जगह लिख सकते हैं. NO2 is involved in the production of acid rain from SO2. Give two equations which describe how the acid rain is formed by the action of NO2 with SO2. ये इस तरह का एक पार्ट शायद दोबारा रिपीट हुआ है, हम कर चुके हैं. तो NO2 किस तरह कंट्रीब्यूट Sir, करता है NO2 एसिड की? जी बोलें. NO2 plus SO2 it results in SO3 plus NO. ओके, बेसिकली ये Then NO SO2 reacts को with SO3 में कन्वर्ट कर देता है और ये SO3 जो है एसिड रेन कॉज करती है वाटर के साथ रिएक्ट करके. इट विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, और जो वो NO होता है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, वापस NO2 बन के रिस्टोर हो जाता है ताकि नेक्स्ट मॉलिक्यूल को जो है वो कर सके. ये क्लियर है? Yes sir. NO2 is described as a catalyst during this process. Okay, explain with the use of an appropriate equation why NO2 is described as a catalyst. Okay, basically ये वही इक्वेशन है जो भी हमने ऊपर लिखी है. आप ये इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे. And they have said that explain with the use of appropriate equation. So आप क्या लिखेंगे इसके साथ एक्सप्लेनेशन में? एक स्टेटमेंट NO2 is formed again to react and that's why it is catalyst. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes sir. Now we are left with the question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 हम कल स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद हम न्यू अक्टूबर नवंबर 2018 का पेपर भी कल ही आगे स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, और कल शायद क्लास 10:30 पे ना हो. वी विल स्टार्ट एट अराउंड 11. ओके Okay sir. ओके, देन टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज.